Hi, this is Momita. I'm two times net qualified. So today we are going to learn some important MCQs that is on principle and practice of management, that is unit 1 for UGC net. So from this I'm starting 100 MCQs on 1 second. Yeah. So I'm starting 100 MCQ series. So stay tuned and please press like button. So let's move to the first question. So the first question is, which of the following is are not a part of a neoclassical management? So इसमें कौन सा neoclassical management में कौन सा नहीं आता है? So let's see the options. Human relation movement. This is a part of a neoclassical movement approach, right? And then is come behavioral science movement. This is also come under neoclassical approach. Then comes administrative theory. This is not a part of a neoclassical approach. So the question asks which is not a part of a neoclassical approach, right? So the answer will be C. So इसमें क्या पूछा गया है? कौन सा न्यूक्लासिकल का अप्रोच का नहीं है मूवमेंट? So human relation movement, it comes under neoclassical. Behavior science movement, this is also come under neoclassical. Actually HIT has given three classifications of management theories, right? One is neoclassical, first one is classical. I'm writing it. First one is classical, right? Next one is neoclassical and third one is modern, right? So हिट ने तीन क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज दिया था. एक तो था क्लासिकल, नेक्स्ट वन इज नियोक्लासिकल एंड अनदर वन इज मॉडर्न. ओके, दिस वन इज मॉडर्न, राइट? सो क्लासिकल में क्या क्या आ जाता है? एज वी नो इट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर. साइंटिफिक मैनेजमेंट आ जाता है इस पे. ओके, नेक्स्ट वन आता है इसका मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेटिक, राइट? एक तो साइंटिफिक आता है, ब्यूरोक्रेटिक आता है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव आता है. Administrative given by Fayol, right? 14 principle given by Fayol, right? So it comes under classical. ये तीनों classical में आता है. एक तो scientific management theory, another one is bureaucratic given by Max Weber, and another one is administrative given by Fayol, right? और neoclassical में ये दोनों आता है, human relation movement आ जाता है and behavioral science movement आ जाता है, right? And modern में आ जाता है system approach, right? This one is first system approach. Second one is socio-technological approach. सोशियो-टेक्नोलॉजिकल अप्रोच आ जाता है. इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इन यूजीसी नेट. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर कि न्यूक्लासिकल में क्या आ जाता है, साइंटिफिक में क्या, सॉरी क्लासिकल में क्या आ जाता है, मॉडर्न में क्या आ जाता है. तो इसमें सोशियो टेक्नोलॉजिकल आता है, राइट? एंड कंटिंजेंसी, लास्ट कंटिंजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच. कंटिंजेंसी और इसको सिचुएशनल अप्रोच भी कहा जाता है. सो व्हाट इज, यू कैन आस्क मी व्हाट इज ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट. ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट है क्या? ओके, सो ह्यूमन रिलेशन में क्या मेनली देखा गया था? इंटरैक्शन बिटवीन मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट. इसमें क्या देखा गया था? इंटरैक्शन बिटवीन मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट देखा गया था. ठीक है, इससे कौन सा थ्योरी आता है? हॉथर्न एक्सपेरिमेंट. हॉथर्न एक्सपेरिमेंट, राइट? इसके अंदर आता है. Remember, Hawthorne experiment come under human relation movement. So if they ask you question like this, Hawthorne experiment come under which movement? It comes under human relation movement. And Hawthorne experiment किसने दिया था?
It is given by Ayrton, right? Ayrton Mayer and Rothenbergers, right? So अगर पूछा जाए who is further of human relation movement, it is Ayrton Mayer. Further of a human relation movement is again Ayrton Mayer. Elton. Sorry, I've written Y. One second. So it is Ayrton. Yeah, yeah. It is Ayrton Mayer. It is given by Ayrton Mayer, right? And what is difference, if you ask me, what is difference between human relation movement and behavioral science movement? See, यहाँ पे से देखा गया था human relation movement में interaction between manager and subordinate को consider किया गया था, but behavior science में क्या consider किया गया था? Communication, how to motivate employee को कैसे motivate किया जाएगा, right? employee को कैसे develop किया जाएगा, leadership और इसमें ऑर्गेनाइजेशन एज अ सोशल सिस्टम माना गया था एंड कम्युनिकेशन को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया था. सो व्हाट आर द थिंग्स दैट हैज कंसिडर्ड इन बिहेवियर साइंस मूवमेंट, लाइक कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय मोटिवेशंस, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन as a social system is considered under behavioral science movement. But in human relation movement, only considered communication. Communication between whom? Between employer and employee. Okay. So इसमें क्या क्या आ जाता है? Behavioral science movement में क्या क्या आ जाता है? In this, it come like Abraham Maslow. Abraham Maslow ने जो दिया था ना, Abraham Maslow का हायरार्की नीड आ जाता है, राइट? इसमें एंड क्या आता है इसमें? थ्योरी एक्स एंड वाई गिवन बाय theory x and y given by MacGregor. theory x and y. Maslow हायरार्की नीड आ जाता है फर्स्ट इसमें, theory x and y आ जाता है इसमें. One second. Yeah, it is theory x and y. Maslow's hierarchy need and theory x and y come under this. Okay. And yeah, again like Herzberg two factors model also come under this behavioral science movement. Herzberg two factors model also come under this. Okay, so remember this. And you can ask me what is difference between in modern approach, what is difference between system approach, social technological approach, and last one is what is contingency approach. System approach क्या होता है? System approach होता है in every organization, it considered in every organization there is a system and subsystem and all work together to achieve organization goal. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम्स एंड सबसिस्टम्स रहता है और वो सब एक साथ काम करते हैं टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल. इसमें सिस्टम अप्रोच में ये माना जाता है. एंड सोशियो टेक्नोलॉजिकल में क्या माना जाता है? Which approach emerged from the finding of a Hawthorne experiment? As I told you in the earlier question, Hawthorne experiment human relation में आता है, right? So it will be human relation approach. The classical theory time period is it is 1900 1930. Option A will be right. So classical theory में कब आया था? 1900 and 1930 में आया था. This will be for classical and this will be for neoclassical, right? And this one is for modern. So remember this one. Classical कब आया था? Classical मतलब scientific, as I told you, scientific, administrative given by Fayol, and even it comes administrative as by given by Fayol and bureaucratic by Max Weber. Okay, ये कब आया था? 1900 and 1930 के बीच में आया था क्लासिकल थ्योरी. एंड 1930 to 1950 में न्यू क्लासिकल आया था. ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो हमने अभी पढ़ा था एंड बिहेवियर साइंस अप्रोच come under 1930 and 1950. And modern approach जो contingency approach or you can say situational approach
एंड सोशियो टेक्नोलॉजिकल अप्रोच सिस्टम अप्रोच कब आया था 1950 से प्रेजेंट पे. ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Arrange the phase of a Hawthorne experiment in their proper sequence. So Hawthorne experiment का ये sequence दिया गया है experiment का. So इसे हमें arrange करना है. This is important. It has come multiple times in UGC NET. So remember this one. So the first will be illumination experiment. First क्या आया था Hawthorne experiment में? Illumination experiment हुआ था. इसमें क्या होता था? जिस लाइट को और इल्यूमिनेशन को डिम कर दिया जाता था एंड सी इज इफेक्ट ऑन एम्प्लॉय. सो इसका इफेक्ट क्या होता था एम्प्लॉय पे, ये प्रोडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट करता था ये देखा जाता था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट में. सो इसमें क्या आउटपुट देखा गया था, इसमें देखा गया था दैट इट डजंट इफेक्ट मच ऑन द प्रोडक्टिविटी. ओके, सो इसके बाद आया था रिले असेंबली टेस्ट, test room experiment. This is second one. And third one is mass interview program. This is third. Bank wiring observation test room last में आया था. And counseling is the fifth. Right? So which one is correct? 1, 2, yeah. So D is correct. राइट. सो रिले असेंबली में क्या बताया गया था, रिले असेंबली में देखा गया था कि whether that if incentive is providing, rest time is providing to employee, whether it effect on productivity. Of course the productivity has increased in this because they have given rest period as well as incentive if they work better. So इसमें ये रिजल्ट देखा गया था कि productivity is affected by both incentives as well as rest period is if given to the employer. Okay, so next में आया था, इसके बाद आया था मास इंटरव्यू. मास इंटरव्यू में क्या कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था, इंटरव्यू पूछा गया था टू एम्प्लॉय बोथ इन लाइक पहले तो डायरेक्टली पूछा गया था, फिर इनडायरेक्टली पूछा गया था. डायरेक्टली लाइक वर्किंग कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट कैसे लगा. सो इट कम्स बोथ डायरेक्टली first, then it also asks indirectly to the employer. Okay, so इससे भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गया था बिकॉज इसमें कम्युनिकेशन हो रहा था, सो सोशलाइजेशन हो रहा था. सो इससे भी देखा कि सोशलाइजेशन से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है. राइट, सो इट्स कम ऑन थर्ड. एंड देन कम बैंक वेयरिंग ऑब्जर्वेशन. बैंक वेयरिंग ऑब्जर्वेशन में 2 sets of people has been given 14 in both rooms. Okay, 2 sets of people बनाया गया था, एक तो 14 करके जिसमें डिवाइड कर दिया गया था. ओके, इसमें ग्रुप इंसेंटिव के जगह पे बोनस दिया गया था इफ दे वर्क टुगेदर एंड अचीव द गोल्स. सो उसमें बोनस दिया गया था. राइट, और एक था इंसेंटिव इज ऑल्सो गिवन टू इंडिविजुअल. इसमें भी देखा गया था कि प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो गया था. राइट, तो इससे क्या रिजल्ट निकला था कि इनफॉर्मल ग्रुप भी इफेक्ट करता है प्रोडक्टिविटी को. बिकॉज यहाँ पे लोगों को क्या लगा, लोगों को लगा कि इफ दे डू वर्क टुगेदर, अगर ये सब एक साथ काम करके सब कंप्लीट कर दे, दे मे बी रिट्रेंच. ओके, काम कंप्लीट होने के बाद भी इन लोगों को रिट्रेंच कर सकते हैं. सो इन दे डजंट वर्क प्रॉपरली. So group in or informal group is also effect to the work or productivity. इसमें ये रिजल्ट आया था. ओके, so answer D will be right. Then आया था counseling. Right, which of these are elements and tools of a scientific management? So इसमें से कौन सा element and tools of a scientific management है? Separation of a planning and doing. Yes, this is the elements and tools of scientific management. Function foremanship, this is also elements and tools of scientific management. And job analysis, this is also elements and tools of scientific management. So answer will be D. Okay, इसके अलावा क्या क्या आता है elements and tools of scientific management में? Standardization आता है,
साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स आता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव आता है, इकोनॉमी आता है, मेंटल रिवोल्यूशन आता है, राइट. सो ये फंक्शन फोरमैनशिप, व्हाट इज फंक्शन फोरमैनशिप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो रिमेंबर दिस इज गिवन बाय टेलर. बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हु हैज गिवन फंक्शन फोरमैनशिप. सो एज इट इज अ पार्ट और इट इज अ एलिमेंट्स एंड टूल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, सो इज इट इज गिवन बाय टेलर, राइट. ये टेलर ने दिया था. सो यू कैन आस्क मी व्हाट इज फंक्शनल फोरमैनशिप. फंक्शनल फोरमैनशिप होता है किसी भी अभी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट. अभी के ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग रहता है, राइट. There is a human resource department, finance department, right? So finance department, right? So where from it come? It actually come from the idea of a function foremanship given by टेलर. यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक्चुअली टेलर ने डिवाइड कर दिया था टू सेट्स ऑफ पीपल, राइट. यहाँ पे 8 आदमी थे, 8 men were there. They are divided into से 4 पार्ट्स कर दिया गया था यहाँ पे. एक तो प्लानिंग के लिए और एक प्रोडक्टिविटी. सो यहाँ से अभी का जो आइडिया है ना फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस इज कम फ्रॉम फंक्शनल फोरमैनशिप. सो ये क्या नहीं फॉलो करता. और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट फंक्शन फोरमैनशिप इज नॉट फॉलोइंग. इट डू नॉट फॉलोइंग यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता है बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब हेड रहते हैं. मार्केटिंग हेड रहता है, फिनांस का हेड रहता है, एचआर हेड रहता है. सो देर इज अ डेविएशन फ्रॉम यूनिटी ऑफ कमांड. सो ये अलग सा अपना ऑर्डर देते हैं एम्प्लॉयज को, ये अलग से देते हैं, राइट. सो ये भी अलग से देते हैं. इफ यू कैन से मार्केटिंग डिपार्टमेंट हेड वांट टू गिव एडवर्टाइजमेंट, yeah, but finance department say no, we can't go for this advertisement because it is a cost consuming, इसपे पैसा बहुत लगेगा, so we are not going to give the advertisement. So यहाँ पे unity of command को deviate. Which management theory that suggests the most appropriate style of a management is dependent on the context of the situation and that adopting a single right style is efficient in the long run. Okay. सो इसमें क्या होता है, बोले रिजिड स्टाइल को फॉलो नहीं किया जाता, राइट. रिजिड स्टाइल को फॉलो करेंगे तो इनएफिशिएंट रहेगा. इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट स्टाइल यहाँ पे अडॉप्ट करना होता है. सो इट इज कंटिन्यूअस अप्रोच. आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फर्स्ट क्वेश्चन. कॉन्टिन्यूअस अप्रोच में क्या होता है, मैनेजर को डिफरेंट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट लेना पड़ता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स ऑफ मैनेजरियल एक्शन लेना पड़ता है एट डिफरेंट सिचुएशन, राइट. So it will be continuous approach or what you can say situational approach. इसे situational approach भी कहा जाता है. So management को different context में मतलब different context में dependent on different context और different situation में different style adopt करना होता है, right. Once again, different situation में different style, not a single style should be taken by management because अगर single style every day adopt करे तो it will be inefficient in long run. Okay, so it comes the main drawback of the functional organization developed by F.W. Taylor is that it fails to recognize, as I already told you, it will be principle of unity of command. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड को नहीं फॉलो किया जाता है, राइट. एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर क्वेश्चन. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एल्टन मेयर कंडक्टेड द हॉथर्न एक्सपेरिमेंट इन. हॉथर्न एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था. सो इट इज डन इन वेस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, राइट. रिमेंबर दिस वन. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of this is a feature of a bureaucracy by Max Weber? So I already told you Max Weber ने
मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी थ्योरी दिया था, राइट राइट। एंड इसमें क्या क्या फीचर्स है? एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, राइट। हायरार्की, राइट। Division of a work, this is also right. So answer will be D. Max Weber says organization is a highly structured, formalized, impersonal. So Max Weber ने कहा था हर एक ऑर्गेनाइजेशन शुड बी स्ट्रक्चर्ड, राइट, और उसमें बहुत फॉर्मलाइज रहना चाहिए एंड इम्पर्सनल रहना चाहिए, पर्सनल कुछ भी वहां पे नहीं रहना चाहिए, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो हायरार्की स्ट्रक्चर, क्लियर रूल्स, रेगुलेशंस, लाइन ऑफ ऑथोरिटी, ठीक है। सो इसमें फीचर्स क्या क्या था? वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव था, राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास होगा, उसमें हायरार्की होगा, वहां पे मतलब फॉर्मलाइजेशन, वहां पे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड फॉलो किया जाएगा, तो इसीलिए वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्वियसली आ जाएगा एंड हायरार्की भी आ जाएगा। लाइक वहां पे फर्स्ट में मैनेजर आएगा, फिर मैनेजर के अंडर और एक सबऑर्डिनेट काम करेगा, फिर उसके नीचे और लोअर लेवल के एम्प्लॉयज काम करेंगे, राइट, लाइक सबऑर्डिनेट काम करेंगे, उसके अंदर और एक लोअर लेवल के आदमी काम करेंगे। ओके, सो इज लाइक हायरार्की, यहाँ पे फॉर्मलाइज बहुत माना गया था, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स रहेंगे, हायरार्की में डिफरेंट डिपार्टमेंट रहेंगे, ठीक है। सो उसे अलग अलग डिवीजन, अलग अलग काम सौंपा जाएगा। सो दिस इज कम अंडर डिवीजन ऑफ वर्क, सो दिस इज कम अंडर ब्यूरोक्रेसी, राइट। और इसके अलावा क्या क्या बोला गया था? ऑफिशियल रूल्स को फॉलो करना होगा, इम्पर्सनल रिलेशनशिप, वहां पे कुछ पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी रहते हैं, राइट, like we make friends in any organization if we associated with. So this is something wrong, this is a fault of this bureaucracy approach given by Max Weber. इसके अलावा ऑफिशियल रिकॉर्ड होगा, so all these are like formalized, so ये हो जाएगा, आंसर will be all of the above, right? Action. What is Spirit D Corps according to 14 principle of management? ये स्पिरिट डी कॉर्प्स है क्या? राइट, स्पिरिट डी कॉर्प्स इज वन ऑफ द 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेयोल। फेयोल ने जो 14 प्रिंसिपल दिया था उसका लास्ट जो था वो था स्पिरिट डी कॉर्प्स, राइट। वन सेकेंड, yeah, it is given by Fayol, right? So spirit decops actually team spirit है, remember this is a team spirit to work together to achieve organization goal। कोई भी organization में सबको टीम की जैसा काम करना होता है to achieve organization goal, it is said by Fayol। so this is basically a team spirit, so it is basically a team spirit, right? So let's see the options which is right. This is the principle of a union in strength, extension of a unity of a command to establish teamwork. So answer A will be right. इसमें क्या होता है? यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली टीम में काम करेंगे तो यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ होगा, वहां पे यूनिटी ऑफ कमांड भी होगा, सब एक साथ एक काम करते हैं तो वहां पे एक ही कमांड होगा दैट गिवन बाय द मैनेजर एंड फॉर एस्टैब्लिशिंग टीम वर्क। ओके, फॉर which of the following is not general principle of management given by Fayol? So let's see. Division of a work, this is a principle of a management, right? 14 principle of management given by whom? It is given by Fayol, right? 14 principle of management given by Fayol. So इसमें पूछा गया है कि कौन कौन सा फेयोल का 14 प्रिंसिपल जो है उसमें नहीं आता है। सो डिवीजन ऑफ वर्क तो आता है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, डिसिप्लिन भी आता है। सो विच इज नॉट कम इन द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज मेंटल मॉडल। मेंटल मॉडल है किसमें आता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में आता है, राइट। सो आंसर विल बी डी। सो इसके अलावा
क्या क्या आता है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में? इसका यूनिटी ऑफ अ कमांड, right, and unity of a direction, subordination of individual interest to general interest, remuneration of a personnel, centralization, scalar order, equity, stability of tenure, initiative, and spirit de corps or team spirit, as I already told you in the earlier question, right? ठीक है, तो move to the next question. Problem in bureaucracy given by Max Weber. मैक्स वेबर ने जो ब्यूरोक्रेसी बताया था उसमें क्या प्रॉब्लम है, उस थ्योरी में क्या प्रॉब्लम है, राइट? सो इनवैलिडिटी ऑफ अ ब्यूरोक्रेटिक एजम्पशन, वहां पे बहुत सारे एजम्पशन किया गया था, लाइक वहां पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता, एज आई टोल्ड यू, दिस इज राइट, राइट। और वहां पे बहुत माना गया था इट इज स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर तो होता ही है ऑर्गेनाइजेशन, राइट, बट इनफॉर्मल इम्पर्सनल नहीं होता है। सो इनवैलिडिटी ऑफ अ ब्यूरोक्रेटिक एजम्पशन, ये एजम्पशन रॉन्ग था वहां पे, सो दिस विल बी राइट। देन इन ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, या वहां पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता नहीं है, फॉर्मलाइज ऑर्गेनाइजेशन ही होता है, ऐसा माना गया, दिस इज ऑल्सो राइट। क्लोज सिस्टम पर्सपेक्टिव, दिस इज ऑल्सो राइट, बिकॉज मतलब मैक्स वेबर जी ने माना था कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट डजंट इफेक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, बट एक्सटर्नल एनवायरमेंट तो इफेक्ट करता है। ऑर्गेनाइजेशन इज ओपन सिस्टम, राइट, बिकॉज अभी जो हुआ था कोविड का केस हुआ था, सो ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज affected by it, so organization cannot be a closed system, it is a open system, right? so ये भी एक है प्रॉब्लम है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी में, so answer will be all of the above. Postcard appeared in the paper on 1937 by अच्छा, so it is given by Luther Gulick. ये किसने दिया था? लूथर गलिक ने। Postcard है क्या? This is a principle of management, right? P stands for planning. Okay, yeah, P stands for planning, O stands for organizing, यहाँ पे O हो जाता है ऑर्गेनाइजिंग, S हो जाएगा स्टाफिंग, D हो जाए, ये आ जाएगा स्टाफिंग, राइट, 1 second, this will be staffing, D for directing, yeah, and CO stands for coordinating. Remember the full form, this is very important, right? Coordinating. And second one, last one is reporting and budgeting. इसका भी full form पूछा जाता है बहुत, so remember the full form. Last one is second last one is reporting and last one is budgeting. It will be budgeting, right? So it is actually given by Luther Gulick, but if they ask the same question, but if they ask like who has edited it, it will be both Luther Gulick and Lyndall Urwick. Okay, edited by both of them. If they ask in the same question who has edited this, it will be both. अगर सेम क्वेश्चन में पूछा जाए who has edited it पूछा जाए, so answer will be both Luther Gulick and Lyndall Urwick. लेकिन अगर पूछा जाए who has given this, ये किसने दिया है, it will be Luther Gulick. और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, P stand for planning, O stand for organizing, S stand for staffing, D stand for directing, CO that is stands for coordinating, R stands for reporting, and B stands for budgeting. Okay, move to the next question. The keyword POCCC was given by, so it is given by Henry Fayol. Henry Fayol जी ने दिया था, like it is called planning, P stand for planning,
right? It is planning. O stands for organizing. C stands for commanding, right? And this C stands for cooperation. This is cooperation. And last C is controlling. Okay. गली वाले ज्यादा important है, but you can also remember this one. This one is given by Henry Fair. That is POC, right? इसका आता है planning, organizing, commanding, corporations and controlling. ठीक है ना? So move to the next question. Match the following the exponents of the school they belong. So यहाँ पे क्या पूछा गया है? Exponents. यहाँ पे जो है ना ये सब exponents है and ये कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं, राइट? ये सब स्कूल्स है, राइट? सो लेट्स सी, एम्पेरिकल स्कूल का आता है, एम्पेरिकल स्कूल का आता है ऑर्न्सडेल। ह्यूमन बिहेवियरल स्कूल का आ जाता है, ह्यूमन बिहेवियर स्कूल का आ जाता है, या वन सेकेंड, स्कूल सोशल सिस्टम आ जाता है चेस्टर बर्नट का, डिसिशनल आ जाता है साइमन का, ह्यूमन बिहेवियरल आ जाता है एल्टन मेयो का। So you can ask me ये human behavior, as I already told you that human relation comes under approach comes under Elton Mayo। तो यहाँ पे human behavior क्यों है? थोड़ा सा confusion है यहाँ पे, confusing questions है actually। So this is a school. If they ask for school, it will be Elton Mayo is come under human behavior school। But अगर पूछा जाए like in the first question, like which theories comes, so it comes under Elton Mayo will become under human relation approach, right? Management is a study of a managerial practice experience. It will like come under empirical, right? Major school of management theories अगर पूछा जाए तो takes decisions between alternatives, right? So as I told you, if they ask empirical school, one second, yeah. So empirical school, अगर ये स्कूल का पूछे, so it will be empirical school, it will be Honesdale। empirical school में क्या माना गया था? That every organization में या मैनेजमेंट स्टडी जो होता है ना, मैनेजमेंट स्टडी जो हम लोग करते हैं, it follows मैनेजमेंट स्टडीज में क्या फॉलो करता है? That मैनेजर्स वर्क एक्सपीरियंस, जो भी मैनेजर एक्सपीरियंस करते हैं वर्क में, वो मैनेजमेंट स्टडी में मतलब we study in that management। okay, so क्या हमारा मैनेजमेंट इज अ स्टडी ऑफ मैनेजरियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इसमें माना जाता है, राइट? एज आई टोल्ड यू। एंड ह्यूमन बिहेवियर स्कूल में क्या माना जाता था? दैट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पे क्या इंटरेक्शन बिटवीन और कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर माना जाता था। यहाँ पे लाइक हाउ टू मोटिवेट एम्प्लॉयज, हाउ टू डेवलप एम्प्लॉयज, और यू कैन से लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन का सोशल सिस्टम माना जाता था यहाँ पे, राइट? सो as I told you, if they ask you school, human behavior school come under Elton Mayo, but if they ask human relation approach, then it comes under Elton Mayo। human relation approach कब Elton Mayo में आता है, but अगर school पूछा जाए तो human behavior हो जाता है, right? So ये school है and that one is theories given by Haidt, राइट? ये डिफरेंस है। एंड डिसीजन थ्योरीज में क्या माना जाता था? डिसीजन थ्योरी स्कूल में माना जाता था इन दैट स्कूल दैट डिफरेंट डिसीजंस और यू हैव टू सिलेक्ट, मैनेजर हैव टू सिलेक्ट अमंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज दे हैव गिवन। मैनेजर के पास जो भी अपॉर्चुनिटी ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज रहता है उससे जो भी
better hope that they have to select from this so that organization goal can be achieved, right? टेक डिसीजन बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स, इसमें एक्चुअली होता है डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में डिसीजन लेना होता है मैनेजर को. सो इट इज गिवन बाय लाइक इट इज हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ दिस स्कूल, इट इज साइमन, राइट. सो सोशल सिस्टम में आता है चेस्टर बर्नस, राइट. सोशल सिस्टम में क्या माना जाता था दैट in any organization there is different system and subsystem and that are work together to achieve organization goals. That could be even a informal subsystems also there, and all the subsystem work together to achieve who is known as a further of a management. So as we are a student of management, we should know who is the further of a management. So it is Peter F. Drucker. Further for management कौन है? Peter F. Drucker. And he is also known for MBO, management by objective. ये भी बहुत पूछा जाता है. So remember this, management by, yeah. What is difference between scalar chain and gang plan given by Henry Fayol, right? So Henry Fayol जी ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया था, राइट, एज वी ऑलरेडी रीड इन द अर्लियर क्वेश्चन. सो उसमें स्केलर चेन भी दिया था, राइट. स्केलर चेन क्या होता है? स्केलर चेन बेसिकली लाइन ऑफ ऑथोरिटी होता है. लाइन ऑफ ऑथोरिटी मतलब लाइक से दिस इज अ मैनेजर इन द टॉप लेवल. मैनेजर के अंदर एक सबऑर्डिनेट काम करते हैं. यहाँ पे से यू कैन से दिस इज बी, उसके नीचे और एक सबऑर्डिनेट काम करते हैं, लाइक बी के अंदर सी काम करता है, देन यू कैन से डी भी काम करता है यहाँ पे, राइट. सो लाइन ऑफ ऑथोरिटी इज फॉर्मिंग हियर, राइट. सो एक के अंदर से पी भी काम करता है यहाँ पे, से देन पी के अंदर सॉरी क्यू भी काम करता है यहाँ पे, राइट. सी यहाँ पे काम करता है, राइट, एंड आर यहाँ पे काम करता है. दिस इज लाइन ऑफ ऑथोरिटी इज फॉर्मिंग. एक के अंदर पी काम करता है, पी के अंदर क्यू काम करता है, क्यू के अंदर आर काम करता है. दिस इज कॉल्ड स्केलर चेन, राइट. सो और गैंग प्लान क्या होता है? गैंग प्लान इज ऑल्सो गिवन बाय फेयोल, लेकिन ये 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में नहीं दिया गया था, ये बाद में फेयोल जी ने दिया था. तो इसमें क्या बोला गया था? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इमरजेंसी राइज हो, सो वहां पे यहाँ पे जनरल स्केलर चेन में कम्युनिकेशन कैसे होता है? ए बी को कम्युनिकेट करता है, फिर बी सी को करते हैं, राइट, सी डी को करते हैं, एंड अगेन ए सी डी को करते हैं, राइट. अगर कुछ भी मैनेजर को कुछ भी बताना हो, टॉप लेवल के मैनेजर को कुछ भी बताना हो, डी फिर भी सी को बोलते हैं, सी फिर बी को बोलते हैं, एंड देन बी टोल्ड टू ए, राइट. B told to A. In this way, A told to P like this, and like P says to Q, Q says to R, right? Or you can say R says to Q, Q says to P, P says to A. So in this is a long run. In long run, this communication is can be suitable. But अगर कुछ भी like कुछ भी emergency आ जाए, in case of emergency, so this communication could be a long way. Okay, so there could be a there could be late in communication. Okay, so emergency में क्या होता है? lateral communication हो जाता है. गैंग प्लान एक्चुअली लैटरल कम्युनिकेशन है, डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है. कुछ भी सेम लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं, एट द सेम लेवल एम्प्लॉयज कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर इन इमरजेंसी. दैट इज कॉल्ड गैंग प्लान. यहाँ पे मतलब इतना घूम के नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट सी क्यू को बोल सकता है, राइट. सो दिस कम्स अंडर गैंग प्लान. दिस इज बेसिकली लैटरल कम्युनिकेशन. सो इसमें क्या बोला गया? लेट्स सी द ऑप्शंस. इसमें पूछा क्वेश्चन में पूछा गया क्या डिफरेंस है दोनों में. स्केलर चेन तो डायरेक्ट जाता है ऐसे घूम घूम के, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग वन, एंड गैंग प्लान इज अ शॉर्टर, और इसमें इमरजेंसी में टाइम को वी कैन रिड्यूस टाइम. ओके, ये लैटरल जाता है डायरेक्ट. बस सी बी को बोले बी, ए को बोले ए, फिर से पी को बोले फिर क्यू को बोले. नो, इन इमरजेंसी सी कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू क्यू एट द सेम लेवल. सो लेट्स रीड द ऑप्शंस. द फॉर्मो
refers to the chain of a supervision ranging from top management to the lowest rank. Right? Formal मतलब scala chain में क्या बताया गया है? Formal में chain of a supervision ranging from top to lowest rank. Top to lowest rank इसमें होता है, right? This is right. The principle suggests that there could be a clear line of authority. हाँ, इसमें clear line of authority है. Scala chain में D, C को बोलते C, B को बोलते B, A को बोलते again A can tell to B, B can C, told to C, C can told to D. This is a clear line of authority is given here from top to bottom, linking all the managers at all level. हाँ, सबके साथ सब link होता है यहाँ पे from top to bottom, right? यहाँ से जाता है ना ए बी को बोलते हैं, बी सी को बोलते हैं, सी डी को बोलता है. सो दिस इज राइट. कम्युनिकेशन थ्रू द स्केलर चेन में इन्वॉल्व डिले टू द सबऑर्डिनेट. राइट, स्केलर चेन में तो हाँ डिले होता है कम्युनिकेशन में एट द सेम लेवल ऑफ ए वांट टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन. यस, इसमें डिले होता है. Fear suggests that the concept of gang plan to avoid delay and allow direct communication. As I told you, यहाँ पे जो इमरजेंसी आता है तो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है. Like C Q को डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है between two subordinates at the same level. Right? As I told you, this is in the same level. It's in the same level, right? And they can communicate directly in emergency, right? So answer A will be right. In which year the book entitled Principle of Scientific Management? So scientific management का बुक जो है, राइट, जो बुक है वो कब पब्लिश हुआ था पूछा गया है, राइट. सो इट इज पब्लिश्ड इन 1911 1911, राइट. सो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो था, राइट, लाइक जो क्लासिकल थ्योरी था वो एक्चुअली कब आया था? एज आई टोल्ड यू इन अर्लियर क्वेश्चन, इट कम्स इन 1900 to 1930, right? Classical theory comes in 1900 to 1930. So scientific management theories come under classical theory, right? But if they ask the book entitled Principle of Scientific Management, when it is published? It is published in 1911 by Taylor. Okay. So remember this one. This is again a confusing question. So move to the next. Actually, all these questions are very important according to the UGC NET perspective. So remember this one. So move to the next question. Gangplank theory of a communication advanced by Henry Fayol is an example of, as I already told you, gangplank theory कैसे जाता है जो हेनरी फ्योल जी ने दिया था? It goes lateral communication, right? Direct communication होता है यहाँ पे, right? Like I already told you, gangplank में डायरेक्ट कम्युनिकेशन लैटरल जाता है ना, ये लैटरली जा रहा है यहाँ पे. एंड यहाँ पे एज आई टोल्ड यू, लाइक यहाँ पे Q एंड C है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, लैटरल कम्युनिकेट करते हैं, सो दैट लेस टाइम इज कंज्यूम्ड इन इट. सो इट इज अ लैटरल कम्युनिकेशन. See, this one is a part 1. So part 1 of my quizzes. So if you want to get more questions like this, you can subscribe my channel. So all these are important questions so that you can get all the questions after this. So I will bring out with more parts, and apart from this I will make clear all the 10 units in it. So if you like, please press the like button. Who coined the term scientific मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था? साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, who coined the term? Actually here they ask who coined the term. If they ask who coined the term, it will be Louis D. Brandeis. ठीक है. अगर पूछा जाए who is the father of a scientific management, it is always Taylor. So this is again a confusing one. See, I am giving you guys a free teaching. Okay, so please motivate me by giving like button, and I will try to clear all the basic of yours.
Okay, and bring out more topic like this. So who coined the term अगर पूछा जाए तो it is given by Louis D Brandeis. ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो टर्म था ये लुइस डी ब्रांडिस ने दिया था, राइट. और अगर पूछा जाए हु इज अ फर्दर ऑफ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट देन इट विल बी टेलर. सो अगेन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है एंड yes it is an important question again for you can say for UGC net, or you can also say for any principle of management, anyone who is reading for principal management. So it is given by, tell one second, yeah, it is given by match the following management thinkers contributions. So यहाँ पे कुछ management thinkers पूछा गया है, बताया गया है and contributors बताया गया है. So इसको match करना है. So F.W. Taylor is time and motion study. Okay. Then एल्टन मेयो ने क्या दिया था, सॉरी हेनरी फेयर ने दिया था 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी साइकोलॉजी टू मैनेजमेंट ह्यूगो मॉन्सबर्ग ने दिया था. एल्टन मेयोजी ने सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ बिहेवियर दिया था. एज आई टोल्ड यू इन अर्लियर लाइक क्वेश्चंस, एल्टन मेयोजी ने किस किस के साथ एसोसिएट थे, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के साथ एसोसिएट थे, ह्यूमन बिहेवियर स्कूल के साथ एसोसिएट थे. सो इट इज समवट लाइक सोशियोलॉजिकल, सम सोशलाइजेशन के साथ कुछ ये सब मतलब एसोसिएट है. सो इट विल बी सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ गुरु बिहेवियर के साथ एल्टन मेयोजी एसोसिएट थे, राइट. एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड मैनेजमेंट ये किसने दिया था, ह्यूगो मॉन्सबर्ग ने दिया था, राइट. एंड F.W. टेलर ने टाइम्स एंड मोशन स्टडी, टाइम स्टडी दिए थे लाइक एफ डब्ल्यू टेलर ने जैसे बताया था कि इफ यू कैन कंप्लीट, इफ द वर्कर कैन कंप्लीट विथ इन अ गिवन स्टैंडर्ड टाइम दे विल गिवन इंसेंटिव. सो इंसेंटिव किसने इनिशिएट किया था, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने. फाइनेंशियल इनिशिएटिव जो था वो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इनिशिएट किया था. वहां पे बताया गया था अगर स्टैंडर्ड टाइम में वर्कर कंप्लीट करते तो उन्हें क्या दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा. सो इट इज गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर. लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शंस में एफ.डब्ल्यू. टेलर की जगह लाइक गर्लिक दिया जाए, हाँ, सो या नो सॉरी गिलबर्ट दिया जाए, एफ.डब्ल्यू. गिलबर्ट दिया जाए, फ्रैंक गिलबर्ट दिया जाए या लिलियन गिलबर्ट दिया जाए, सो आंसर विल बी फ्रैंक एफ.डब्ल्यू. सॉरी एफ.डब्ल्यू. टेलर की जगह पे अगर गिलबर्ट दिया जाए, ठीक है, गिलबर्ट, लिलियन गिलबर्ट अगर बोला जाए, लाइक LILLIAN, लिलियन गिलबर्ट. Do you know who is Lillian Gilbert? Lillian Gilbert is the first lady of management. ठीक है, actually Gilbert. Okay, and Lillian Gilbert and Frank B. Gilbert. ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ. फ्रैंक गिलबर्ट, फ्रैंक बी गिलबर्ट, ये के है, राइट. वन सेकंड, इट इज के, फ्रैंक बी गिलबर्ट. सो या सो एक्चुअली टाइम एंड मोशन स्टडी इन तीनों ने मिलके बनाया था. एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, लिलियन गिलबर्ट ने, फ्रैंक बी गिलबर्ट ने बनाया था. लिलियन गिलबर्ट इज अ वाइफ ऑफ फ्रैंक बी गिलबर्ट. सो ये हस्बैंड थे और ये इनके वाइफ थे. एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर, तीनों ने मिलके टाइम एंड मोशन स्टडी किया था. मोशन स्टडी बेसिकली इज गिवन बाय लिलियन गिलबर्ट एंड फ्रैंक गिलबर्ट एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर इज गिवन टाइम स्टडी. ठीक है, सो ये तीनों मिलके किया थे ये. सो ऑप्शंस में अगर ये तीनों रहेगा तो यू हैव टू सिलेक्ट दिस थ्री. And if they only given F.W. Taylor, you have to select F.W. Taylor, right? This is again a very repetitive question and important question at the same time, right? And Henry Fayol ji ने 14 principle of management दिए थे, as we already discussed.
And Elton Young जी ने I also already told you this socialization concept of group behavior दिए थे, and Hugo Munzberg ने application of a psychology to management दिए थे, right? So answer will be A 3 B. Yeah, answer will be B, right? Yeah, answer will be B. The people of engineering as an economist which influenced F.W. Taylor to develop scientific management principle was authored by. यहाँ पे पूछा गया है, वन सेकेंड, या यहाँ पे पूछा गया है इंजीनियरिंग एज एन इकोनॉमिस्ट, ये पेपर किसने दिया था, राइट? इट इज गिवन बाय हेनरी आर टाउनी. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट इज गिवन बाय हेनरी आर टाउनी. इसी से एफ.डब्ल्यू. टेलर इन्फ्लुएंस होके साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बनाया था. ओके, so through this engineering as an economist paper, F.W. Taylor is influenced by it and formed scientific management principles. So it is Henry as an economist. This paper is given by or written by, you can say, rather you can say written by Henry R. Downey. So answer will be C. Question: at which level scientific management is applied? So scientific management कौन से लेवल पे अप्लाई होता है? It is shop level, shop floor level. Shop floor level मतलब lower level में, field level में, और you can say technical level में क्या अप्लाई होता है? Scientific management is applied, right? And if they ask higher management level कहाँ पे अप्लाई होता है? FIOL में. FIOL में एडमिनिस्ट्रेटिव या टॉप लेवल मैनेजमेंट में ये अप्लाई होता है. एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी कहाँ पे अप्लाई होता है? जो फियोल जी ने दिया था वो हायर लेवल में अप्लाई होता है, ठीक है ना? इज एडमिनिस्ट्रेटिव. सो शॉप लेवल, वन सेकेंड, या इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव. या इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव. एंड शॉप फ्लोर लेवल मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में लोअर लेवल के जो वर्कर्स होते हैं उनको फॉलो किया गया था, राइट? लाइक इंसेंटिव दिया जाता है लोअर लेवल को इफ दे वर्क गुड. सो ये बेसिकली लोअर लेवल के एम्प्लॉयज को सोच के साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दिया गया था. एंड हायर मैनेजमेंट लेवल, या it will be considered as a bad management. So answer B will be right. स्टेबिलिटी ऑफ टेनर किसे कहा जाता है? लाइक बी को कहा जाता है. दैट इट इज एसेंशियल टू गेट एन एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय को, न्यू एम्प्लॉय को एकस्टम करने के लिए, दैट विद द ऑर्गेनाइजेशन टू द न्यू वर्क एकस्टम करने के लिए कुछ टाइम देना होता है. वी कैन अननेसेसरी, मैनेजर कैन अननेसेसरी टर्न ओवर और रिट्रेस द एम्प्लॉय. if they retrain that employee, it will be considered as a bad management. Okay, who is the father of a modern operation and management? So modern operation and management theory किसने दिया था? So it is given by Fayol. हेनरी फ्योल जी ने दिया था. हेनरी फ्योल जी को माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन मैनेजमेंट थ्योरी, राइट? मॉडर्न ऑपरेशन मैनेजमेंट थ्योरी के फादर माना जाता था हेनरी फियर को, बिकॉज he is given administrative theory. Administrative is something how to you have to work in the organization, right? 14 principle of management उन्होंने दिया था, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दिया था. उसमें बताया गया था हाउ टू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज समवट रिलेटेड टू ऑपरेशन, राइट? कि कैसे काम किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में. सो ही इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ अ मॉडर्न ऑपरेशन मैनेजमेंट थ्योरी, राइट? सो आंसर डी विल बी राइट. So that's all for today's class. I will bring out more 3 parts after this. So if you like, please press the like button, and thank you for today's class. Thank you.